today in this press conference, wherein we seek to highlight our endeavors, the processes we have undertaken to augment quality education and expand infrastructure in the sector of education in our country. I am joined by my colleague, Minister of State, Shri Upendra Kushwaha. One of the biggest landmarks in terms of our endeavors to strengthen the infrastructure systems in school education will shortly be dedicated to the nation under the aegis of the Shala Asmita Yojana. Today I am also joined by Secretary of School Education, Shri Kuntia, and the Secretary of Higher Education, Shri Vinayshil Oberoi. And before I highlight the forthcoming plans of the ministry, I would like to pause and reflect on the steps which have been undertaken firstly in the school sector to enhance quality of education. We rolled out a project called Pade Bharat, Bade Bharat, understanding that learning outcomes were a challenge in the school sector and predominantly in government schools. Through Pade Bharat, Bade Bharat, we allocated funds of over 500 crores so that early reading, writing and numeracy can be strengthened for students in classes 1 and 2. This year we are hoping to expand it and take it up to class 3 as well. हमारी शिक्षा प्रणाली में कई वर्षों से छात्रों का शैक्षिक असेसमेंट 3 वर्ष में एक बार होता था। इस सरकार के अंतर्गत हमने निर्णय किया कि इस अकादमिक वर्ष से छात्रों का असेसमेंट वार्षिक किया जाएगा ताकि छात्र को शिक्षा की दृष्टि से अपने आउटपुट को, आउटकम को इंक्रीज करने में, बढ़ाने में, अपनी योग्यता को बेहतर करने में अगर कोई योगदान चाहिए शिक्षकों के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, तो वो समर्थन, वो बैकिंग उस छात्र को हम दे पाएं। मुझे कहते हुए हर्ष है कि जिन जिन राज्यों ने पढ़े भारत, बड़े भारत में भारत सरकार के साथ काम किया, उन राज्यों से अब प्रमाण सहित हमारे पास डेटा आ रहा है कि अर्ली रीडिंग, राइटिंग और न्यूमरेसी के इन सभी कामों में न सिर्फ शिक्षक ज़्यादा रुचि ले रहे हैं बल्कि छात्रों का फाउंडेशनल बेस शिक्षा में भी बेहतर हो रहा है। हमारे पास ये जानकारी थी कि कक्षा 6 से 8 में जो हमारे छात्र सम्मिलित हैं, विशेषतः सरकारी स्कूलों में, उनका साइंस और गणित के प्रति रुझान कम होता जा रहा है। To ensure that there is an incremental inclination towards science and mathematics, we undertook a project called the Rashtriya Avishkar Abhiyan, wherein we appeal to institutions of higher learning to adopt schools and undertake training of teachers so that students can be better taught the concepts of maths and science. States that engaged with the Government of India under the Rashtriya Avishkar Abhiyan received 25 lakh rupees per district so that additional aids as teaching methodology, learning methodologies can be provided to the school within the realm of the district that adopted and became a part of the Rashtriya Avishkar Abhiyan. There was yet another attempt made by us to ensure that learning is not confined to only textbooks or the classroom, that a child understands the cultural impact of the society that he or she lives in, and that is why we engage children across all government schools in a program called Kala Utsav. मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि पिछले साल ही कला उत्सव का ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर संपन्न हुआ। राष्ट्र के इतिहास में पहली बार स्कूल के बच्चे अपनी प्रादेशिक कला, नृत्य, संगीत, हैंडीक्राफ्ट्स के आधार पर एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता कर अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे और 5 लाख तक का इनाम वो अपने लिए, अपने स्कूलों के लिए ले गए। इस साल फिर नवंबर के माह में कला उत्सव
अपेक्षित है और मैं आशावादी हूं कि इस साल भी बहुत ही जोश के साथ हमारे छात्र इसमें अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, इससे जुड़ेंगे। After the RTE Act 2009 came into existence, one of the big challenges that academicians in the school system faced and administrators was the challenge of bringing out of school children back into school because there was no administrative bridge provided for the same. And that is why, recognizing that in our country currently there are 60 lakh children out of school, we in the MHRD have reached out to every state and now are in a position to provide a bridge school course so that those children who are out of school through an exemplar model which is given to the states through NCERT can now help bring out of school children back into the mainstream school system, an effort which we see was administratively disabled after the RTE came into force. I would also like to here highlight that many state governments expressed their concern to the Government of India that there are many standalone schools where not many sufficient amount of teaching was done, and they were of the opinion that there should be consolidation of small schools so that a larger infrastructure can be provided to children who otherwise went into classrooms with no teachers. We at the MHRD are reaching out to every state so that a matrix of regulations can allow states to consolidate schools so that children get better facilities under one roof. Children who otherwise would move from one school to another will be given transportation facilities. Given that in the last year's budget, there are many states who have been helped to consolidate the school systems in their respective states, and the success of such an engagement, we will now allow states across the country to carefully undertake this kind of a inclusive exercise in conjunction with district authorities, school management committees, and looking at the fact that they need to track the migration of every child from one school to another. Coming to Shala Asmita Yojana, for many years in our country, data with regards to school education was available in blocks. Never before was data available for the individual student, individual teacher, individual government school, for the Government of India in conjunction with states to undertake an exercise to enhance quality of education. I am pleased to share with you that in conjunction with all the states, the Government of India plans to now dedicate to the nation in the coming next 1 month the Shala Asmita Yojana, which will become the world's largest student tracking mechanism, wherein we will have the capacity to have a daily track of attendance of students going to government schools, attendance of teachers, attendance of even the non-academic staff that goes to the school, which will help us intervene in terms of learning outcomes that needs to be enhanced. This will be done in conjunction with state governments, where the Government of India becomes a facilitator in terms of what is the pathway that needs to be undertaken to upgrade schools that are lacking not only in quality education, but also lacking in terms of infrastructural needs. This kind of a mammoth exercise is a first of its kind which will be taken in the school education sector. I am also pleased to share with you that currently close to 16 states are undertaking a student-related child tracking mechanism which has helped them rationalize not only enrollment, help them also highlight the attendance matrix in their institution, and also engage with teachers more productively. The database for the entire country
will be available for analysis by the Government of India because of this initiative completely by March 2017. I am hopeful that the surge of quality in the school sphere can be addressed through this engagement wherein we seek to leverage technology. Before I move on to higher education, let me also express my deep gratitude to all the states who have ensured that they give us their fullest cooperation in the Swachh Vidyalaya initiative. राष्ट्र के इतिहास में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से ये राष्ट्र के समक्ष निवेदन प्रस्तुत किया कि क्या ये संभव है कि 1 साल के अंतराल में हम हर सरकारी स्कूल में लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था करें। अपने आप में ये चुनौती बहुत बड़ी थी, लक्ष्य समय सीमा के अंतर्गत ही हमें प्राप्त करना था। इसलिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ सभी राज्य की सरकारों के प्रति, सभी ऑफिसर्स के प्रति कि पहली बार राष्ट्र ने देखा कि कैसे 4,17,000 से ज़्यादा स्कूली टॉयलेट्स भारत सरकार और प्रदेश की सरकारों के समन्वय के माध्यम से हम बनाने में सक्षम रहे, हम बनाने में सफल रहे। ये भी यहाँ कहना उचित होगा कि पहली बार हमने देखा कि मात्र कागज पर स्ट्रक्चर को खड़ा करने से हमने संतोष नहीं किया। हमारी ओर से भारत सरकार के 300 से ज़्यादा अफसर राष्ट्र के हर जिले में गए ताकि वो स्वयं निरीक्षण कर इस बात की पुष्टि कर सके कि वाकई में वो टॉयलेट, वो सुविधा वहाँ पर दिलवाई गई छात्रों को या नहीं। सो फॉर दिस इनिशिएटिव to meet historical success, I reiterate my gratitude to all the officers, the state governments that were party to the success of the Swachh Vidyalaya campaign. Moving on to the higher education sector, I would like to here firstly highlight that we in the Government of India were aware that there were pendency with regards to regulation for the IITs, the Indian Institute of Information Technology, a bill that was long pending and passed in the year 2014 and notified in the first month of 2015. I am also pleased to share with you that the School of Planning and Architecture bill, which also was pending since 2013, disabilitating the degree-giving capacity of these institutions, was passed under the leadership of this very government in both houses of parliament. I would like to here state that under this government, in the past 2 years, we have opened 6 new IITs, 1 NIT, 5 IIITs, 6 IIMs, 2 IITs, 1 NIT, 5 IIITs and 1 ISA. I am hoping that the emergence of these new institutions across the states will also add to quality education in the higher education sector. I would like to here compliment not only the Secretary of Higher Education but also our regulators who have for the first time rolled out the National Institution Ranking Framework. We had made a promise to the nation and particularly our students when we had launched this initiative on the 29th of September 2015 that we will give a ranking framework to the country in the first week of April, and keeping that timeline, the first ranking separately for the fields of engineering, management, pharmaceuticals, architecture was dedicated along with universities on the 4th of April 2016. I would like here to add that over 3,500 institutions across the country joined us in this exercise, making it the most and the highest participated ranking exercise in the entire world. I would also like to share that from the next academic year onwards, ranking will be now additionally be available for medical and law institutes as well. I would like to here express my gratitude to the IIT Council that accepted the Government of India's suggestion
that fees be waived off for our students who are from the SC/ST community, students who are differently abled, and students whose annual income is less than 1 lakh rupees. Additionally, students whose family annual income is less than 5 lakh rupees have a waiver now of 2/3 of their fee, a first of its kind under this government. To enhance increased participation and engagement of students through the regulator with education institution, the Know Your College portal was dedicated to the country in November 2014 so that students can make informed decisions as to which organizations or institutions do they seek admission in. आज मुझे कहते हुए हर्ष है कि नो योर कॉलेज पोर्टल पे वर्तमान समय में देश की लगभग 50,000 इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं उनकी पूरी डिटेल्स के साथ, ताकि जो भी छात्र एडमिशन लेने से पहले अपनी इंस्टीट्यूशन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहता हो, they can avail of this information at the click of a button. I would like to here state that to leverage technology and enhance our engagement with the student, for the first time, all NCERT books were made available free of cost from classes 1 to 12 in English, Hindi, and Urdu. Additional books available through the system of CBSE were also made free, available on the ePathshala and eCBSE portal and web and mobile app. I would now like to add that in the higher education sector, in the forthcoming next 1.5 months, by the end of next month, close to 1,000 course materials for undergraduate and postgraduate courses will be available free of cost for our students in the higher education sector. Understanding that our nation is a nation of diverse languages, celebrated diverse cultures, we have dedicated on the 25th of last month the Bharatvani portal, wherein free information in various Indian languages is available to all citizens. I would like to add that in the first year, our Bharatvani portal has higher education material in over 22 languages, which will be scaled up to 100 languages in the forthcoming 1 year. Also, we have 130 glossaries of various languages and terminologies. The mobile app currently has information in 35 Indian languages and dictionaries, which will be scaled up to 250 languages in the next 1 year. The importance of this language engagement is this, that in the higher education sector, our students are challenged by the language barrier, and thus we believe that this engagement will also help them bring about a better interface with their faculty members or other fellow students. I would here also speak about the fact that there has been an impetus given to skill, wherein on one side we have through the AICT appealed that every engineering or management institution that wants to utilize their infrastructure to doubly provide for skill training can do so if that training program has an established national occupational benchmark without coming to the regulator for any kind of permission. I would also like to say that an impetus similarly is being given under the UGC, under the Kaushal Vikas Kendra, so that there is an amalgamation of effort between academia and our skilling programs. I would like to say here that in terms of internationalization of curriculum and an increased and enhanced engagement with international academia, for the first time in the history of our country, the government of India has facilitated over 500 foreign academicians to come and teach in Indian government state institutions or central institutions at no extra cost to any student or faculty member. I am happy to share that in this year, exponentially this figure is to rise to at least 1,000 such teachers. I would also like to say that apart from our initiative of Gyan,
This morning, as I expanded on our engagement of states for the RUSA program, I have confirmed to all states that we have celebrated academicians from very established and celebrated institutions internationally who have now committed themselves to help upgrade our curriculum, especially in the state sector of higher education. I can confirm that academician from UC Berkeley, University of Pennsylvania, Georgia Tech, University of Washington, MIT, Yale, Cambridge, University of Edinburgh have given us their confirmation that they will help upgrade the curriculum systems in our state universities and colleges if the state governments so desire. We will also look forward to their active engagement, including an engagement between AICT and the Stanford University, which I think will be extremely beneficial for many engineering students across the country. Given that we have a plethora of announcements, given that we have a plethora of progressive work that has been done in the past 2 years, I would now, before I take questions, only say that the 2 years that we have spent in this department have been spent in identifying those gaps which have gone unnoticed for a very, very long time. Education sector was being serviced in silos. There were many announcements made, but in terms of implementation, we found many schemes lacking on the ground. It has been the effort of officers of both Department of Higher Education and School Education to ensure that, as it's said in English, that God lies in the details, that it is that detail, it is that God that we pursue. My grateful thanks to all states and all citizens of the country who have reposed their faith in us, and my assurance to them that we will continue to deliver on the promise of quality education. I would also like to share that we have made an e-book of our journey of the past 2 years, which will be available for public view on our MHRD website and our Twitter handle, and I'm sure through today's press conference. Thank you. Thank you, Honorable Minister, for your comprehensive briefing. Now, friends, we'll take some questions. I will try to accommodate as many as possible. There are placards kept in front of you. Please raise them so that I can call out. We'll start with number 23. Check audio. कुंदन न्यूज़ 24 से मैम, एजुकेशन पॉलिसीज़ की ड्राफ्ट अभी लास्ट वीक जमा की गई थी आपके मंत्रालय में, क्या है उसके बारे में? टीआरएस का कई जगह बयान भी आया था कि वो चाहते हैं कि पब्लिक डोमेन में डाला जाए जिससे देश जान सके कि क्या है वो। कुंदन जी, मैं आपके माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि राष्ट्र के इतिहास में पहली बार ये हुआ कि पॉलिसी बनाने से पहले आम नागरिक से पूछा गया कि वो किस प्रकार की पॉलिसी चाहते हैं। जब हमने ये प्रयास किया तो हमें ये कहा गया था कि इतने विशाल देश में ये संभव नहीं होगा। हमने टेक्नोलॉजी को लेवरेज करते हुए हर राज्य के साथ बैठक की और आज लिखित रूप में हमारे पास लगभग 1,10,000 से ज़्यादा गाँवों से एजुकेशन पॉलिसी से उनकी क्या अपेक्षा है ये उपलब्ध हुई। 5,000 ब्लॉक से लगभग हमारे पास जानकारी उपलब्ध हुई। करीबन 13 से 1400 अर्बन लोकल बॉडीज़ ने अपना वक्तव्य हमें दिलाया। 20 राज्यों ने लिखकर अपना वक्तव्य हमें भेजा। उसके बाद हमने एक कमेटी का गठन किया ताकि ये कमेटी उन सब विषयों को पढ़े, अथवा अगर उन्हें कुछ और एडिशनली कहना है तो वो अपनी बात को हम तक पहुंचाएं। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब हमने ये पूरी यात्रा शुरू की तब हमने राज्य की सरकारों से ये विशेष वादा किया था कि कुछ भी पब्लिक डोमेन में डालने से पहले हम उनकी राय को उन रिकमेंडेशंस पर प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो ये सत्य है कि 27 तारीख को कुछ रिकमेंडेशंस हमारे पास आए। चूंकि अभी भी राज्य सरकार को अपना मत व्यक्त करना बाकी है, इसलिए एक आधी अधूरी चीज को राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत कर मुझे लगता है अब तक के 2 साल के इस पूरे काम को सबसे बड़ा मुझे लगता है अन्याय होगा अगर हम राज्यों के साथ जिस समन्वय से अब तक काम कर रहे हैं उस समन्वय के सेतु को तोड़ दे मात्र एक हेडलाइन के लिए। Ma'am, Mr. T.S. Subramaniam has said that if ministry is not going to public that report, then he is going to do so.
Has he written a letter to you about the same? I will only say this, that this education policy will not become an attempt to be a legacy of one individual who seeks a headline. My request is that this is the property of 110,000 villages, over 5,000 blocks, over 500 districts, over 20 states that have given it to us with the confidence that any recommendation that comes to us will be first shared with them before it is made a draft policy. So I will only say that it's unfortunate that misleading or distasteful headlines are done, but I'm only of the opinion that I will not renege on my promise to state governments that they will have a voice in it before I dedicate it to the nation. स्मृति जी, दो प्रश्न हैं। एक स्कूल का राइट टू एजुकेशन का स्टेटस, दूसरे जो देश भर में पूरे ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ चल रहे हैं स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में, उसका स्टेटस क्या है आज के? दो आपने प्रश्न किए स्कूली शिक्षा से संबंधित। मैंने जैसे कि कहा, राइट टू एजुकेशन एक्ट की घोषणा अपने आप में हेडलाइन बहुत बनी, लेकिन जब हमने वर्तमान में उसकी स्थिति देखी 2 साल पहले इस मंत्रालय में आकर, तो 2 प्रमुख बातों पर आज मैं आपका ध्यान आकर्षित करती हूँ कि जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन थे उनको दोबारा स्कूल में लाने का जो प्रावधान था वो अपने आप में डिसेबिलिटेट हो गया था, क्योंकि अब किसी भी प्रशासन के पास प्रशासनिक ढांचा इस एजुकेशन राइट टू एजुकेशन एक्ट के बाद बचा नहीं था कि वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को वापस स्कूलों में ला सकें। इसीलिए हाल ही में हमने एक मैट्रिक्स बनाया है जो प्रदेश की सरकारों के साथ शेयर करके एक मॉड्यूल हम लोग एनसीईआरटी के माध्यम से बनाकर प्रदेश की सरकारों से कहेंगे कि आप अपने प्रदेश की दरकार के हिसाब से आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को दोबारा स्कूलों में लेकर आएं। दूसरा, एक बहुत विख्यात जो एक संशोधन अक्सर बातों में आता है कि बच्चों को 25% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एडमिशन मिलेगा। पिछली सरकार ने इसकी घोषणा की, लेकिन इसके पीछे कोई आर्थिक प्रावधान नहीं किया। इसका मतलब ये मात्र घोषणा तक सीमित रह गई। हमारी सरकार के आते ही हमने राज्य की सरकारों से जब बात की तो उन्होंने कहा कि जब तक इसके पीछे आर्थिक सहायता ना प्रदान की जाए तब तक ये मात्र पेपरी एक बयान रह जाएगा। हमने आर्थिक प्रावधान दिया। करीबन 18 लाख बच्चे हैं देश भर में, अगर मेरी जानकारी सही है तो इट्स सब्जेक्ट टू करेक्शन, जिनके संबंध में राज्य की सरकारों ने हमें जानकारी दी कि उनको हमने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भर्ती किया है और हमने फिर राज्यों को भुगतान किया, ताकि ये महज एक कागजी अनाउंसमेंट ना बने बल्कि धरातल पर ये एक हकीकत बन जाए। ब्लैकलिस्टेड यूनिवर्सिटी की आपने चर्चा की। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 21 ब्लैकलिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ की जानकारी हमें दी, अपने वेबसाइट पर दी और पब्लिक नोटिस में भी लेकर आए। साथ ही हमारे उच्च शिक्षा सचिव ने स्वयं सभी शिक्षा सचिवों को लिखकर और बात करके भी ये सूचना दी कि चूंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है, इसलिए स्टेट के अंतर्गत इन लिस्टेड ब्लैक लिस्टेड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो कानूनी और उनको बंद किया जाए। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहती हूँ, एक ऐसे संस्थान था जिसके खिलाफ यूजीसी को ऑर्डर हुआ कानूनी कि वो एफआईआर दर्ज करें, वो एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मैम, मैं मुकेश हूँ दैनिक जागरण से। आपने राज्यों से दोबारा संपर्क करने की बात कही, लेकिन इस दौरान ये जो ड्राफ्ट बन रहा था उस दौरान आपकी भी बैठक हुई और ड्राफ्टिंग कमेटी ने भी जोन वाइज राज्यों से बातचीत की थी। तो क्या आपको लगता है इसके बाद भी ड्राफ्ट को डालने से पहले राज्यों से बात करने की जरूरत है? मुझे लगता है कि ये पूरी की पूरी पॉलिसी मात्र एक व्यक्ति को महान या महिमा मंडित करने की पॉलिसी नहीं है। ये अधिकार राज्य की सरकारों का है और उनके अधिकारों का हनन करना लोकतंत्र में बहुत बड़ा अपराध होगा। मैम, एक जेनेरिक सवाल है कि आप भी कह रहे हैं कि सब चीज पहली बार हो रहा है, हर मंत्री ही बोल रहे हैं कि सब चीज पहली बार हो रहा है। मैं प्रमाण के साथ तो बाकी No, what I'm saying, ma'am, if you listen to me. Can you identify yourself, sir? I'm Deepak Das from Times of India. Yes. In the 67 years, we also had a BJP government. And when you came to power, you also highlighted the achievement of the old government. Yes. So do you think, or even all other ministers think, that nothing happened in those 7 years also? I think that Sarva Shiksha Abhiyan, I'll give you an example, Mr. Das, that was started under the aegis of the first NDA government, is something that we are improving upon, like with projects like Pade Bharat, Bade Bharat, which are a sub now part of the Sarva Shiksha Abhiyan that was started under the leadership of the previous NDA government. Hence, to say that the NDA government, when in power at the center, did not initiate these exercises
would do a great injustice to our leadership. Let's take an example of the highways that are being built. The fact that for the first time the nation could even dream about the fact that infrastructure would get such a central assistance and push from the center and engagement with states is a legacy of the previous NDA government, which is now being strengthened under the leadership of the Prime Minister and an able minister like Shri Nitin Gadkari. So there are many initiatives that have been undertaken for the first time with regards to learning outcomes enhancement, with regards to increasing of quality education, or giving an added thrust to research and scientific input and output. But let it also be said that this is not only a continuum of the good leadership and governance provided under the leadership of Shri Atal Bihari Vajpayee, but it's also a new example being set under the leadership of the Honorable Prime Minister. Yeah, 150. यस मैं सुदर्शन न्यूज चैनल से हूं, कृष्ण कुमार दुबे। मैं आपका ध्यान नकल जो योजना देश भर में चलती है, आप केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार नकल को रोकने का बड़ा प्रयास करती है, लेकिन पिछले 2-3 दिन पहले हमने जो देखा बिहार में जिस प्रकार से ये पूरे सिस्टम को कोलैप्स करके जिस प्रकार से रिजल्ट्स घोषित हुए, जिस प्रकार से बच्चों ने बाजी मारी, इसको किस प्रकार से निपटा जाएगा? क्योंकि इतने हाईटेक सिस्टम होने के बावजूद भी इस नकल योजना पे विराम नहीं लग रहा है। मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि कहीं ना कहीं आपने अपने इस प्रश्न में इस बात का भी संकेत दिया कि शिक्षा केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी और मर्यादा के अंतर्गत आता है। ये सत्य है कि एक चुनौती राज्य की सरकारें इस वक्त उससे जूझ रही हैं, लेकिन इस चुनौती का इजाफा इस बात से भी हुआ कि नो डिटेंशन पॉलिसी को लाया गया, जिसकी वजह से लर्निंग आउटकम्स को हमने गिरते हुए देखा। बहुत सारा साइंटिफिक और एडमिनिस्ट्रेटिव एविडेंस प्रस्तुत हो चुका है, जिसके अंतर्गत इनफैक्ट बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री स्वयं एक लिखित रिपोर्ट में कह गए कि पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई नो डिटेंशन पॉलिसी जो है उसका खामियाजा हमारी आने वाली पीढ़ियां भुगत रही हैं, और आज शायद इसी का एक प्रमाण आपको बिहार के इस केस में भी दिखा। तो हमारी कोशिश है कि शाला अस्मिता योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से लर्निंग आउटकम्स की दृष्टि से बच्चे को एग्जाम की उस धरातल पर पहुंचने से पहले ही उसकी पूरी यात्रा में रेमेडियल मदद से हम उसको सशक्त इतना करें उसके कॉन्सेप्ट में कि जब वो लिखने बैठे अपना एग्जाम तो कहीं ना कहीं उसकी कॉम्पिटेंसी उसमें दिखाई दे। हमारे राष्ट्र की एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम रोट लर्निंग पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं और कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन हमारे देश में कम होती है। क्रिटिकल थिंकिंग हमारे बच्चों का स्कूल एजुकेशन में कम दिखाई पड़ता था, जिसकी वजह से आप ये सारी घटनाओं को देख रहे हैं। इस साल जो हमारा नेशनल असेसमेंट सर्वे होगा उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड हम लोग टेस्ट करने का प्रयास करेंगे छात्रों का, ताकि अगर कॉम्पिटेंसी को उनका जज करें तो पता चलेगा कि एक सब्जेक्ट को कितना वो समझ पा रहे हैं। और मेरी आशा है कि केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर फिर इसको हम मेनेस तो मानते ही हैं सोशली, लेकिन अगर एकेडमिकली देखा जाए तो इसका मतलब ये बच्चे, ये छात्र इस बात का संकेत दे रहे हैं कि उन्हें अपनी शिक्षा की वृद्धि में, आउटकम की वृद्धि में सहायता की जरूरत है। संदीप मैम, एक सवाल जी। एक सर्वे आया है जिसमें जहाँ से आप आती हैं, अमेठी का जो आप प्रतिनिधित्व करती हैं, सबसे खराब हालत वहीं पर है। पहले वहाँ आप कब ध्यान देंगी और किसकी जिम्मेदारी है वहाँ? देखिए, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि शिक्षा वो क्षेत्र है जहाँ पर अकस्मात आपको चीज़ें उभरते कम से कम इम्पैक्ट की दृष्टि से नहीं दिखती। अमेठी के बारे में जिस प्रकार से आप रिसर्च और रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये इस बात का संकेत है कि वर्षों से उस इलाके की अनदेखी शैक्षिक रूप से हो रही है। मैं इतना ही कहूँगी कि मैंने स्वयं आग्रह किया बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ से कि क्या ये संभव है कि वहाँ उस क्षेत्र के लगे जनता जनार्दन को और नागरिकों को विशेष रूप से क्वालिटी एजुकेशन किंतु कम दर पर प्राप्त हो। वहाँ पर एक नया सैटेलाइट कैंपस उन्होंने खोला है जो इसी एकेडमिक वर्ष से शुरू हो रहा है। मुझे बताया गया है कि जून माह से एडमिशन शुरू हुए हैं और अगस्त से वहाँ क्लासेस शुरू होंगी। वहाँ की सबसे बड़ी चुनौती ये रही थी कि स्कूली शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा का प्रावधान प्राइवेट सेक्टर में होने की वजह से जो गरीब तबके के लोग थे वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो अब अफोर्डेबल एजुकेशन वहाँ लाने का भी एक प्रयास है। लेकिन अगर हम पूरे देश को देखें
क्वालिटी और अफोर्डेबल एजुकेशन की दृष्टि से तो वर्तमान में हमारे यहाँ पर एक स्टूडेंट फीडबैक के माध्यम से प्लेटफॉर्म डेवलप हो रहा है जिसका नाम है स्वयं, और स्वयं के अंतर्गत राष्ट्र भर के IITs, IIMs, NITs, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कक्षा 9, 10, 11, 12 और 12वीं का बोर्ड भी एक मोबाइल ऐप और पोर्टल पे 10 भारतीय भाषाओं में इसी वर्ष से उपलब्ध होगा। अगस्त के माह से लगभग 323 कोर्सेज उपलब्ध होंगे। अक्टूबर के माह से और मार्च तक कम से कम 426 कोर्सेज उपलब्ध होंगे। ये सारे के सारे डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज और स्कूली शिक्षा मुफ्त में उपलब्ध होगी। राष्ट्र भर में 1000 एग्जामिनेशन सेंटर्स हम स्थापित कर रहे हैं ताकि वहां पर कोई विद्यार्थी जाकर एग्जाम दे और न्यूनतम शुल्क पर अपना सर्टिफिकेशन प्राप्त करे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये एक अभूतपूर्व काम इसलिए भी होगा क्योंकि मूक्स की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कभी भी नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ क्रेडिट नहीं होता। यहाँ पर UGC और AICTE के हमारे दोनों चेयरमैन विद्यमान हैं। उनके साथ मिलकर भारत सरकार क्रेडिट सिस्टम भी इस पूरे मूक्स प्लेटफॉर्म पे देगी ताकि जो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पढ़ेगा उसे फिजिकल इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज, उसमें भी प्रवेश लेने में मदद मिलेगी। मुझे लगता है उच्च शिक्षा की दृष्टि से और डिजिटल क्रांति की दृष्टि से स्वयं एक बहुत बड़ा कदम होगा। मैडम, मेरा नाम, मैं संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ चैनल से। मैडम, मेरा एक ही सवाल में 2 सवाल है मैडम। पहला सवाल है मैडम मेरा, एक तो देश में कोचिंग इंस्टीट्यूटों का ज़बरदस्त रैकेट चल रहा है मैडम, लाखों रुपए की फीस छात्रों से वसूली जाती है। तो इसी सवाल में दूसरा सवाल है, कोटा जैसे बड़े शहर में देश भर से छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं, हर महीने वहाँ पे कई छात्र आत्महत्याओं के कई सारे केसेस आते हैं, आपने भी देखे होंगे। और जब भी 10वीं 12वीं के रिजल्ट आते हैं, परिणाम आते हैं, कई छात्र छात्राएं आत्महत्या करते हैं। इस दोनों सवाल को जवाब। सबसे पहले तो जो छात्र चुनौतियों से गुजरते हैं 10वीं और 12वीं कक्षा के बाद, उनकी सबसे बड़ी चुनौती ये रहती है कि एडमिशन वो कहाँ प्राप्त करेंगे, और उसके भय के मारे उनका स्ट्रेस बढ़ता है। स्वयं जैसे एक प्रावधान के माध्यम से कम मुक्त शिक्षा उन्हें दिलवाने में हम लोग सक्षम होंगे, क्योंकि छात्र की अभिलाषा ये रहती है कि वो शिक्षा प्राप्त करें तो सेलिब्रेटेड इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से प्राप्त करें। तो स्वयं पहला एक ये हमारी ओर से प्रयोग और प्रयास है। दूसरा, कोचिंग में हमने देखा है कि अधिकतर वो बच्चे जाते हैं जो JEE का एंट्रेंस एग्जाम पास करना चाहते हैं। हमने IIT काउंसिल से चर्चा की और ये समझा कि जब बच्चा किसी प्रदेश से हिंदी स्पीकिंग या इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर अपने आप को कोई नई चुनौती में पाता है, तो उस चुनौती को वो अच्छे से ना अपने अभिभावक के साथ शेयर कर पाता है, ना टीचर को बता पाता है कि आप अंग्रेजी में जो पढ़ा रहे हैं उसे समझने में मुझे वक्त लग रहा है, और वो एक एडिड प्रेशर बन जाता है। हमने IIT PAL के माध्यम से अब आगामी 2-3 माह में हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि एक पोर्टल और एक मोबाइल ऐप के माध्यम से IIT सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उसे हम मुफ्त में उपलब्ध कराएं। IITs के कुछ विख्यात प्रोफेसर्स और जो राष्ट्रीय पुरस्कार से जिनको हमने सुसज्जित किया है, ऐसे हमारे कुछ वरिष्ठ प्रोफेसर्स कॉन्सेप्ट्स की दृष्टि से ऑडियो विजुअल के माध्यम से उस पे पढ़ाएं। हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि मल्टीलिंगुअल उसमें एक हेल्पलाइन रहे, ताकि हेल्पलाइन के माध्यम से अगर किसी एक छात्र को कोई विशिष्ट क्वेश्चन पूछना है तो वो भी उसको पूछ सके। मेरी कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी के साथ और रेवेन्यू में एडिशनल सेक्रेटरी के साथ भी इस संदर्भ में चर्चा हुई, क्योंकि ये संस्थाएं या तो प्रदेश में स्टेट में NGOs अथवा सोसाइटी की नज़र से काम करते हैं, अथवा ये किसी अपने आप को कंपनी अफेयर्स में रजिस्टर करते हैं या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स में अपने आप को रजिस्टर करते हैं। हमने ये निवेदन किया कि कई माता पिता पर ये दबाव बनाया जाता है कि वो कैश ट्रांजैक्शन करें, और इस प्रकार की जो इर्रेगुलर फाइनेंशियल जो एक गतिविधि है उस पर भी उन्हें कमर कसने को हमने आग्रह किया है। ये भी कहना चाहूँगी कि CBSE भी फ़ोन पर काउंसलिंग करती है बच्चों का एग्ज़ाम से पहले। तो हमारी ओर से जितना संभव है हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये दबाव बच्चों पर कम हो। इस साल हमने IIT से ये भी कहा
कि अक्सर ये देखा जाता है कि एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिग्री लेवल के क्वेश्चंस, जिसकी वजह से बच्चा कहता है कि मैंने 12वीं में वो पढ़ा नहीं और आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं डिग्री लेवल के। IITs ने लिखित रूप में हमें आश्वस्त किया है कि ये एग्जाम अब 12वीं के करिकुलम को मैच करता हुआ एग्जाम होगा, ताकि वो बच्चा जो कोचिंग नहीं करता वो भी सक्षम है अपनी स्कूली पढ़ाई के आधार पर इस एग्जाम को करने में। Yeah, I request you to ask one question because there are many others also waiting. Please, yeah. राघवेंद्र पांडे के न्यूज़ से। मैम, इस देश से शिक्षा माफिया राज कब खत्म होगा? जिस तरह से UGC के गाइडलाइन को बहुत सारे यूनिवर्सिटी और डीम्ड विश्वविद्यालय भी उसको फॉलो नहीं करते, लेकिन पूरे देश में एक यूनिवर्सिटी का रैकेट है, एक जाल है। घर बैठे वकालत की डिग्री, डॉक्टर की डिग्री, इंजीनियर की डिग्री और तमाम प्रकार की डिग्रियां उनको मिल रही हैं। जिन लोगों में गुणवत्ता भी नहीं है वो भी उस डिग्री को लेके आगे बढ़ रहे हैं। छोटे बच्चों की स्थिति यह है कि ग्रामीण भारत में उनको ठीक से पढ़ाया नहीं जाता, बिना फेल किए हुए उनको आगे बढ़ाते हुए चले चलते हैं, आगे चल के उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। तो मैम, ये तमाम प्रकार की जो दिक्कतें होती हैं, और यहाँ हिंदुस्तान में जितने लगभग टीचर हैं, अगर उनका टेस्ट लिया जाए तो वो भी रिजल्ट बहुत माइनस में है, चाहे वो CBSE बोर्ड के टीचर हो या तमाम। जी, सब ये प्रश्न ही है सर, ये व्यथा बोल रहे हैं। जी मैम, तो इन सब चीजों को मैम कैसे जाए कि बच्चों को जो शिक्षा मिले वो गुणवत्तापूर्ण हो, वो उनके आगे भविष्य में काम दे, और टीचर भी ऐसे हो जो योग्य हो, जो उनको पढ़ा सके। तो इस तरह की सारी चीजों को दो-तीन बातें नहीं उनकी अपनी व्यथा है, उन्होंने देखा होगा, इसलिए 2-3 बातें मैं इस संदर्भ में आपके समक्ष रखना चाहूंगी। मैंने अपने वक्तव्य में नो योर कॉलेज पोर्टल की बात की। हम इस विषय को और विशेषतः प्रेस के मित्रों से आग्रह करूंगी कि इसको आप जितना छात्र के पास ये जानकारी पहुंचा पाएं उतना हमारे लिए भी अच्छा होगा। हमने कहा है छात्र को कि जो हमारे रेगुलेटर्स के पास रजिस्टर्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, उनके कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कौन शिक्षक पढ़ा रहा है, कौन शिक्षक की क्या काबिलियत है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी जानकारी उपलब्ध है। साथ हमने छात्रों को ये भी कहा कि अगर ये जानकारी फर्जी है तो आप हमको बताइए, हम उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। वर्तमान में हम लोग राष्ट्र भर में 1900 संस्थाओं की जियो टैगिंग कर रहे हैं। हमने ये कहा कि अगर अब AICTE UGC की परमिशन चाहिए तो वीडियोग्राफी होगी आपके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की, फिर वो ऑन साइट डेटा जो है, वीडियोग्राफ है, वो उसी दिन अपलोड होगा ताकि वो इमीडिएटली अवेलेबल हो। यही हमने कानून अब CBSE के स्कूलों के लिए भी किया है। दूसरा हमने ये कहा है, जो हमने नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की, उसमें पता चला कि जब यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस अपने डेटा हमको दे रहे थे तो कितने फर्जीवाड़ उसमें टीचर अपॉइंटमेंट्स को लेके हो रहा था, जहां डबल पैन नंबर मिल रहा है। ये सारा डेटा हमारे समक्ष आया, तो हम यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूशन से बात कर उनका ध्यान उस पर आकर्षित करके हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस विषय को हम उनके ध्यान में लेकर आए। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पिछले 2 सालों में प्रधानमंत्री जी ने बार बार इस बात पर तवज्जो दी कि जो ग्रीवियंस मैकेनिज्म है उसको स्ट्रेंथन करें, ताकि जो एक छात्र भी कंप्लेंट करे तो उसको इसकी कंप्लेंट का कहीं ना कहीं समाधान मिले। पिछली सरकार में हमने देखा कि लगभग 60 to 65% ही छात्र की तकलीफ का निवारण अथवा समाधान किया जा रहा था। वो भी समाधान की अवधि क्या थी, 280 दिनों में समाधान उनको मिलता था। इस सरकार में हमने 98% ग्रीवियंसेस को और इंडिविजुअली ट्रैक करके ग्रीवियंसेस को हमने सोल्यूशन दिलवाया। और ये सारी गतिविधि जब आप ग्रीवियंस लाते हैं सरकार के पास तो मात्र 28 दिन में हमने इसको समाप्त किया। इसका मतलब जब जब छात्रों ने हमसे कहा कि आप किसी न किसी प्रकार से किसी चुनौती का शिकार हो रहे हैं, तब तब हमने छात्रों की सहायता की। ये भी देखा गया कि पहले यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ब्लॉक ग्रांट लेते थे और छात्र तक उस ग्रांट को पहुंचाने में बहुत समय लगता था। हमारे पास जो एम्पेरिकल एविडेंस UGC के माध्यम से प्रस्तुत हुआ है, उसमें देखा कि पिछली सरकार के लास्ट के 2 सालों में करीबन 35,000 छात्रों को स्कॉलरशिप मिली। इस सरकार में 2 साल में ही वो लगभग 77,000 छात्रों तक पहुंच रही है। पिछली सरकार के लास्ट 2 सालों में लगभग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लगभग 800 करोड़ ही ट्रांसफर हो पाया। इस सरकार के 2 साल में 2000 करोड़ रुपया हम छात्रों को डायरेक्ट दे पाए हैं। आज भी रूसा का जो कार्यक्रम है वो दर्शाता है कि किस प्रकार से हम लोग
केंद्र के साथ साथ प्रदेश के साथ साथ इंस्टीट्यूशंस के साथ डिटेल में काम कर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगी कि जब हम इस मंत्रालय में आए तब रूसा में 9 राज्यों ने देश भर में भी अपना हायर एजुकेशन प्लान नहीं बनाया था। आज हालत यह है कि 35 राज्यों यूनियन टेरिटरीज का हायर एजुकेशन प्लान बन चुका है। पहली बार देश में हायर एजुकेशन सेक्टर में सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी को देखते हुए 115 यूनिवर्सिटीज देश भर में हमने दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट। करीबन 1180 से ज़्यादा कॉलेजेस को हमने ग्रांट दिया है, क्योंकि जब तक हम सरकारी इस तंत्र को और स्वस्थ ना कर दें और सशक्त ना कर दें, अक्रेडिटेशन को मैंडेटरी ना कर दें, तब तक जो बदलाव की आप अपेक्षा करते हैं, छात्र की चुनौतियों को कम करने की जो आप अपेक्षा करते हैं, उसमें कठिनाई आ रही थी। तो हमारी कोशिश रही है इन 2 सालों में कि हम इन सारी चीज़ों पर एक साथ मिलकर काम करें, क्योंकि छंद छंद में काम करने से पूर्णतः समाधान मिलना बहुत ही मुश्किल है। 156. Hi, Ipsita from Catch News. So the government had announced 6 new IIMs in the last few months. Yes. However, till date, some of these new IIMs are struggling to attract good faculty and also struggling with the infrastructure, specifically the new ones. So, how does the ministry plan to, address this concern? One of the challenges that I saw in terms of legacy in this department was that many announcements were made in the year 2009, but none of the infrastructure projects had rolled out, or for that matter, students started studying in ramshackle places where they did not get the permanent infrastructure. The one fundamental administrative decision that we took in this government was till such time the land by the state was not transferred to the government of India, we did not allow academic sessions to begin in those particular institutions. Apart from transferring land to the government of India so that the institution can come up, we also ensured that for the first time our officers went and inspected even the temporary accommodation, the temporary teaching facilities that the state had to offer. Because of this proactive engagement, we saw that all the IIMs and IITs that we had proposed started functioning in terms of their academic years. We, in terms of even engagement with the industry, recognize that there are many industry leaders who said that the relationship between the institution and the industry was not as strong as they would like it to be. And that is why, even to give impetus to research and innovation, we requested our institutions through projects like Uchchatar Avishkar Yojana to say that if you propose an innovative or a research project, then ensure that you have at least 25% of the industry backing it. And I'm happy to share that over 160 crores has been put up by industry, which is only a 25% component, to innovation and research. I would also like to say that through TechWhip, which is an engagement between the Government of India and the World Bank, we are now giving prominence to building and strengthening infrastructure in higher education sphere in the Northeast and Jammu and Kashmir. Because that is another issue where I saw that there is a huge migration of students for better educational opportunities to major metro centers because they were lacking in these opportunities in their own home states. I would also like to add that we started a scholarship like Ishan Uday, wherein students from the Northeast were given up to 10,000 students were given undergraduate scholarships so that they can be assisted in their achievement of educational goals. So I am of the also the opinion that the one pertinent point, whereas how well will the newer organizations and the setups fructify, we have given every institution a mentor institution which has a legacy. And once you have a hand-holding process with regards to having a mentor, then the early hiccups that normally would have met that organization or that amalgamation of academician is something that gets minimized because you have experienced administrative leaders and faculty members who then merge their efforts to ensure that these new institutions bear fruit in a very short period of time. Yeah, madam there in the हेलो मैम, ईशा CNBC आवाज़ से। मैम मेरा सवाल है कि कुछ ई-कॉमर्स साइट्स पे ऐसा पता चला था कि 10th और 12th की जो किताबें हैं उनकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, तो क्या ये मुद्दा आपके सामने आया है, और अगर आपके सामने आया है तो आप इस पे क्या कदम उठाने की ईशा, मैंने जैसे कि कहा अभी कि कक्षा 1 से 12 तक सारी किताबों को हमने ई-पाठशाला पर वर्तमान में मुफ्त कर दिया है। CBSE से संबंधित सारी जो पाठ्यक्रम हमारे पास उपलब्ध थी उसको भी मुफ्त कर दिया है।
दूसरा, कई राज्य ऐसे हैं जिनको हमने एनसीईआरटी के माध्यम से अपना कॉपीराइट भी दे दिया, ताकि उन राज्यों में जितनी किताबें वो छापना चाहें उतनी किताबें वो छाप सकते हैं। हमने कई राज्यों से ये भी कहा कि आपकी स्कूली किताबों को हम डिजिटाइज करके उसे ई पाठशाला पे अपलोड कर देंगे। वर्तमान में 8 राज्यों ने अपना जो स्कूली शिक्षा से संबंधित पुस्तक संग्रह है उसे हमारे साथ शेयर किया है, जिसे हम डिजिटाइज कर रहे हैं और उसको अपलोड करेंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि जब ई प्लेटफॉर्म्स पे मोबाइल ऐप्स के माध्यम से किताबें एनसीईआरटी की जो बेसिकली नेशनल करिकुलम है वो मुफ्त में उपलब्ध होगा, प्लस कॉपीराइट हम राज्यों को उपलब्ध कराएंगे, तो मेरा मानना है कि कम से कम ये प्रेशर जनता जनार्दन पर थोड़ा कम होगा। हमने एनसीईआरटी के स्टॉक्स को भी चेक करवाया और एडिक्वेट स्टॉक्स पाए गए हैं। हमने ये भी कहा कि सीबीएसई स्कूल्स के माध्यम से सभी स्कूलों को ये ताकीद दी, ये इंस्ट्रक्शन दिया कि आप छात्रों को और अभिभावकों को प्रेशर नहीं कर सकते कि कौन सी किताब कहाँ से कैसे खरीदनी है। जो प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक है उससे ज़्यादा आप प्रेशर नहीं कर सकते। इसी से एक और बात जोड़ती हूँ, मैं ये भी जानती हूँ कि राष्ट्र भर में कई हमारे जो माता पिता हैं, अभिभावक हैं, वो इस बात से चिंतित हैं कि देयर इज अ सडन स्टीप हाइक इन फी स्ट्रक्चर which is uncalled for which they were never informed. We have through CBSE written to all the schools stating that for hiking of fees in CBSE schools, you have to take into confidence the parent-teacher association till such time they do not agree to a fee hike. If the fee hike is not in proportion to the facilities that you're giving in schools, and you are not allowed to do a fee hike right at the middle of the academic year, you are not allowed to keep away receipts which are rightfully to be given to parents. These are the initiatives and these are the instructions that are going through the government and through the board, including advisories to the states, so that the interest of students and parents can be protected. मैं प्रणव हूँ राज्यसभा टीवी से। मैम ये जानना चाह रहा था कि क्या कोई टीचर्स ट्रेनिंग को लेकर, जो शिक्षकों के प्रशिक्षण को लेकर कोई राष्ट्रीय कोई कार्यक्रम, कोई ऐसी योजना जिससे कि कॉम्पिटेंस जो है टीचर्स का उसमें इजाफा हो, और साथ में जो मनोविज्ञान जो है बच्चों का, इसको टीचर्स भी समझें, और ये कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम इस तरह की कोई योजना मंत्रालय की तरफ से? जी, हमने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन और टीचर्स इन ट्रेनिंग का आगाज़ किया था, और उसके अंतर्गत हमारी ये कोशिश थी कि टीचिंग को कैपेसिटी की दृष्टि से बढ़ाने के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप और एकेडमिक लीडरशिप को भी हम लोग बढ़ाएं। आपके साथ ये शेयर करते हुए मुझे खुशी है कि राज्य की सरकारों के साथ हमने चर्चा कर 2 निर्णय किए। एक कि सरकारी स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं उन सब की राष्ट्र भर में ट्रेनिंग का हम प्रबंध करें। साथ ही हमारे आईआईएम्स ने मॉड्यूल्स बनाए हैं जिसके अंतर्गत हमारी सारी यूनिवर्सिटीज़ और उनसे संबंधित जो एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमिक स्टाफ है वो ट्रेनिंग ले सकता है इन कंजंक्शन विद आईआईएम। इसकी हमने शुरुआत की। HRDCs जो आता है UGC के अंतर्गत, जो हमें रीजनल टीचिंग कैपेसिटी को बढ़ाने में मदद करता है, उनका हमने वर्कशॉप कर उनको बतलाया कि किस प्रकार से टीचिंग कैपेसिटी को हम बढ़ा सकते हैं। हमारा ये भी प्रयास है कि डाइट्स जो क्षेत्र में जिला स्तर पर स्कूल टीचर्स के माध्यम से प्री सर्विस इंटर सर्विस ट्रेनिंग का काम करता है, उनको भी एक तरह से इवैल्यूएट करने का प्रोसेस वर्तमान में चल रहा है। हमारे टीचर इंस्टीट्यूशंस जो है देश में, बहुत सारी कंप्लेंट्स से आती हैं that they have become just shops where somebody registers themselves and then comes out saying that I am a teacher. We are now making a kind of a framework for even evaluating the benchmark of teacher educational institutions in our country, so that even a student who wants to be a teacher tomorrow knows what kind of an institution are they getting admitted in. The diet portal that we are evolving is something that will give a quarterly report to every state government as to what is the benchmark that their institutions in terms of teacher training have managed to reach or not reach. Additionally, we are going to leverage technology to ensure that teacher training becomes a part of every school's refurbishment and every school's journey. We have also, through the NCTE, revised the curriculum for pre-service, in-service training and for children with special needs.
पहले ये होता था कि सिर्फ विशिष्ट टीचर्स को ही चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की ट्रेनिंग दी जाती थी। हमने ये निर्णय किया कि हर टीचर को इस बात की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनकी कैसे मदद हो। इन 2 वर्षों में ऐसे 3 लाख टीचर्स को हमने ट्रेन किया और आज तक पंडित मदन मोहन मालवीय टीचर ट्रेनिंग मिशन के अंतर्गत हमने 33 प्रोजेक्ट्स को राष्ट्र भर में अप्रूव किया, जिसमें से 4 स्कूल्स ऑफ एजुकेशन है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, करीबन 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर करिकुलम और पेडागोजी हैं, हमारे टीचिंग लर्निंग सेंटर्स 14 हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर्स 4 हैं, सेंटर्स फॉर एकेडमिक लीडरशिप एंड एजुकेशन मैनेजमेंट 2 हैं, इनोवेशंस अवार्ड टीचिंग रिसोर्स ग्रांट्स इंक्लूडिंग वर्कशॉप और सेमिनार्स, ऐसे 5 प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा के बीच में समन्वय के माध्यम से टीचर ट्रेनिंग को हम लोग और एम्फेसिस दें। स्कूली टीचर्स और प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग पर तो हम लोग ध्यान दे ही रहे हैं, साथ में हमने हायर एजुकेशन सिस्टम में कॉलेज प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग का भी एक मॉड्यूल बनाया है और हम आशावादी हैं कि ये सारी ट्रेनिंग कम से कम अभी तक हमारी 5 रीजन्स में हो चुकी हैं बहुत ही सक्सेसफुली। इसका परिणाम हम आगामी 1-2 साल में देखेंगे। मैडम, मैं अनीस रहमान कारवां उर्दू न्यूज़पेपर से, मेरा सवाल ये है कि एनसीईआरटी की जो उर्दू की किताबें हैं पिछले सेशन में भी 6 महीने तक बच्चों को नहीं मिली थी एनडीएमसी के स्कूलों में और दूसरे सरकारी स्कूलों में, और इस साल भी अभी तक जब जैसा आपने फरमाया तो अभी तक उर्दू की किताबें बिल्कुल मौजूद नहीं हैं। तो इस सिलसिले में आप मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हमने दिल्ली सरकार को अपनी ओर से जो कॉपीराइट है किताबों का एनसीईआरटी का, वो कॉपीराइट हमने दे रखा है ताकि पूरी मात्रा में जितनी दरकार है दिल्ली के स्कूलों की बच्चों की उसको वो खुद छाप कर दे सकें। हमने अपने स्टॉक्स को भी चेक किया, स्टॉक्स में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन जो सरकार की मर्यादा में इतना ही कह पाऊंगी कि दिल्ली सरकार के जो विशेष अधिकारों के अंतर्गत आता है उस पर टिप्पणी करने के बजाय मैं दोबारा उनसे एक निवेदन कर लूँगी आज कि आपने ये एक और चुनौती मेरे समक्ष प्रस्तुत की। ये भी कहना उचित होगा कि हम रूसा का जो उच्च शिक्षा का एक प्रावधान के माध्यम से जो इंस्टीट्यूशन सरकारी क्षेत्र में उनको सशक्त करने का प्रयास कर रहे हैं, दिल्ली ने आज तक अपना रूसा का हायर एजुकेशन प्लान भी हमारे पास नहीं भेजा है। देश भर में शायद एक ही राज्य की सरकार है जिसका हायर एजुकेशन प्लान हमारे पास अभी तक नहीं आया है। मैं मिनहाज अहमद, हमारा समाज उर्दू डेली न्यूज़पेपर से। मैं 2-3 बातें आपसे पूछना चाहूँगा। पहले तो ये बातें पूछ लीजिए, इसी से रिलेटेड है। और सबसे पहले इनसे कुशवाहा जी हैं, ये भी जानते हैं कि हमारे यहाँ बिहार में जो शिक्षा मित्र के तहत टीचर रखे गए हैं तो उनमें उन टीचरों के बारे में पहले चैनलों में भी सर्वे आया था कि प्रिंसिपल से पूछा जा रहा है कि आपके प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो वो राष्ट्रपति का नाम बताते हैं। कुशवाहा जी जानते भी होंगे। और अगर सीएम का नाम पूछो उनसे तो वो पीएम का नाम बताते हैं। तो ऐसों के लिए से निपटने के लिए आपके पास कोई पैराग्राफ है क्या? दूसरी चीज़, वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ तो सिर्फ मिड डे मील खाने के लिए आते हैं और मिड डे मील खा करके चले जाते हैं, उसके सुधार के लिए कुछ है क्या? तीसरा मामला यह है जो उर्दू टीचर जी, तीसरा मामला यह है कि जो उर्दू सरकारी दूसरी ज़बान है उसके लिए ना तो टीचर अवेलेबल हैं ना किताबें अवेलेबल हैं, उसके लिए आपके पास कुछ वो है क्या? 2 बातें पहले मैं स्पष्ट करना चाहूँ कि क्योंकि एजुकेशन स्टेट की गवर्नमेंट के अंतर्धीन भी आती है, इसलिए टीचर इवैल्यूएशन, टीचर ट्रांसफ़र, टीचर पोस्टिंग, ये सारे अधिकार राज्य की सरकार के हैं। ये भी कहना उचित होगा कि जब हम राज्य को इस बात की छूट देते हैं कि वो किसी को टेम्पररी पोजीशन में रखें, तब हम ये भी कहते हैं कि अगर उस व्यक्ति के पास उचित साधन नहीं है पढ़ाने के तो उसकी ट्रेनिंग करना अनिवार्य है, और लिखित रूप में हमें राज्य की सरकार आश्वस्त करती है कि वो इस प्रकार की ट्रेनिंग उन्हें प्रोवाइड करेंगे। और ये अपेक्षा होता है कि जब ये ट्रेनिंग हो जाए तो कम से कम जिन चुनौतियों के बारे में आप संकेत दे रहे हैं वो चुनौतियाँ टीचर के माध्यम से छात्र के प्रति ना हो। एक सत्य ये भी है कि हमने देखा है कि ग्रामीण भाग में टीचर्स नहीं जाते, बहुत सारे टीचर्स अधिकतर अर्बन सेंटर्स के आसपास रहते हैं। हमने पिछले 2 सालों में हर राज्य की सरकार से गुजारिश की है कि वो टीचर्स का स्प्रेड आउट पूरे प्रदेश में करे, और विशेष रूप से जो टीचर
10 या 15 साल तक मात्र शहरी भाग में पढ़ा रहा है और ट्रांसफर नहीं होना चाहता है ग्रामीण क्षेत्र में, उनके संदर्भ में भी राज्य सरकार जो निर्णय लेना चाहे अथवा ट्रांसफर पॉलिसी बनाना चाहे उसको वो बनाए। हमने ये भी देखा कि बार बार टीचर्स की परमानेंट पोजीशंस को भरने का हमारा जो निवेदन है उसका परिणाम ये हुआ है कि पिछली सरकार के अंतिम के 2 सालों में देश भर में मात्र 40% जो हमारी वैकेंसीज थी, 40,000 वैकेंसीज भरी गई। इन लास्ट के 2 सालों में हमारी सरकार में 1 लाख से ज़्यादा पोजीशंस को भरा गया राज्य की सरकारों के द्वारा। तो हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है, क्योंकि अधिकार राज्य की सरकार का है, कि हम निरंतर अपने निवेदन को वहाँ दोहराते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ जो प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में कही थी, जो आगामी इसी माह में फलीभूत होती नजर आएगी, एक कार्यक्रम है जिसका नाम है विद्यांजलि। विद्यांजलि के माध्यम से करीबन 20 राज्यों ने कहा है कि वो इससे जुड़ना चाहेंगे। इसके माध्यम से आम नागरिक जो अपने इलाके के स्कूल में मदद करना चाहता है, मात्र रीडिंग करना चाहता है या रेमेडियल बच्चे को मदद देना चाहता है, वो माईगव और स्टेट के एक इंटरफेस की वजह से फिर अपनी सेवा किसी सरकारी स्कूल में दे पाएगा। उसका प्रोटोकॉल हम सेट कर चुके हैं और 20 राज्यों के साथ शेयर कर चुके हैं। कोशिश हमारी ये है कि ये विद्यांजलि का हमारा प्रयास 16 जून को ही राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाए। मैम, for the last couple of days there have been various reports of ministries reported rejection of 3 names for the IIM Ahmedabad chairperson's post. What is the ministry's official stand on this? If the names have been rejected, what are the grounds for rejection? Like I said, I am of the opinion that I would not like to give credence to supposed headlines. I will only say this, that it is the right of institutions to propose certain names giving valid reasons, and if valid stands are not found, then we are having the right and the authority to ask for a reason. That possibly can be the only I think interface that the ministry has at the level of the joint secretary with an institution. This is not something that is scaled up to the minister. Yes, Kalyan. Yeah. Recently, the government issued 2 ordinances to have a common entrance exam for medical and dental colleges all over the country. Is there any proposal to have such a system for the technology institutions of the center and the states? Since education is in the concurrent list, and given that we have under the central government already established technological institutions, and there is a template for engagement with students and institutions and academia under the AICTE, I am of the opinion that currently the system which is functioning in terms of the JEE entrance exam is limited to the particular institutions that are fundamentally and constitutionally recognized to partake in it. And any state that might want to propose something different is welcome to do so. I'll have to study depending on a state's proposal. Ma'am, there were reports about your ministry considering a Vedic board. Now, has a final call been taken? If yes, then what is it all 3 about? commission reports have proposed a board in school for Sanskrit and Ved. The last one was the Gopal Swami report. I'm of the opinion, before taking any considered decision on the same, experts who are academic and administrative in nature need to propose a pathway. Only then can such a decision be taken. The last 2 questions will take one. स्मृति जी, मेरा सवाल जो है थोड़ा एजुकेशन से हट के है। मैं सिद्धार्थ हूँ आज तक से। मथुरा में जो हुआ अभी रिसेंट, जिसमें पुलिस वाले भी मारे गए, उसके लिए क्या लगता है आपको? वहाँ की जो स्टेट की मशीनरी है वो कहीं ना कहीं फेल रही, क्या हुआ? चूंकि ये एजुकेशन से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसलिए गैर एजुकेशन के सवाल आप बाद में पूछ लें। जी बाबू। मैडम बाबुल आकलन न्यूज़ से हैं। कौशल विकास विभाग के द्वारा एक आपका MOU साइन हो रहा है। इसमें 8वीं के जो बच्चे, जो ITI के जो बच्चे हैं, उनको 10वीं का आप सर्टिफिकेट देंगी और 10वीं के बच्चे को 12वीं का देंगी। क्या MOU साइन आपका हो गया पिछले दिनों या होने वाला? ये रिकमेंडेशन आया है हमारे पास, जिसको हमने स्वीकार किया है। इस बात को यहाँ पर स्पष्ट करना भी ठीक होगा कि पहली बार ITIs में पढ़ने वाले छात्रों को एक गरिमा प्रदान करने का हमारा प्रयास है
और हमने ये कहा है कि वो ITI में पढ़ने वाले ब्रिज कोर्स के अंतर्गत NIOS के सर्टिफिकेशन के माध्यम से जो सर्टिफिकेशन का एग्ज़ाम देते हैं उसके आधार पर उन्हें वो इक्विवेलेंस प्राप्त होगा। NIOS के सर्टिफिकेशन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये भी होगी कि ये छात्र फिर राष्ट्र भर में किसी भी संस्थान में जो उच्च शिक्षा का संस्थान है उसमें फिर एडमिशन प्राप्त कर पाएंगे। एक छोटा सा सवाल इसके साथ है कि बच्चे साइंस और आर्ट्स का चक्कर होगा, जिनको डिग्री मिलेगी 12वीं का, बच्चे BA में जाना चाहेंगे तो साइंस में जाएंगे कि आर्ट्स में जाएंगे, कैसे जा पाएंगे? देखिए, किस स्ट्रीम में जाएं वो एक छात्र के निर्णय पर निर्भर होता है। ये कहना कि सभी इंस्टीट्यूशन के छात्र एक दिशा में जाएं मेरे लिए संवैधानिक नहीं होगा। ये छात्र का निजी निर्णय है कि वो किस स्ट्रीम में जाना चाहेगा। लास्ट क्वेश्चन। मैम अमित कुमार ANI से, नक्सल प्रभावित इलाकों में 2 सालों में एजुकेशन को कितना स्ट्रेंथन किया गया है, क्या क्या किया गया है और आगे क्या योजना है? आज ही हमने झारखंड में एक मॉडल डिग्री कॉलेज की जब शुरुआत की वहाँ पर तो लड़कियों ने हमसे जब चर्चा की तो कहा कि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, क्या आप इसमें लड़कियों के लिए विशेष हॉस्टल का प्रबंध करेंगे या नहीं, और उनका मात्र निवेदन ही आया था जिसको मैंने स्वीकृति दे दी है। और झारखंड के इस नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हमने विशेष लड़कियों के लिए इस प्रावधान को किया है। सिमिलरली आंध्र प्रदेश में भी आज बहुत ही एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो चुनौतियों का सामना कर रहा था वहाँ पर भी हमने मॉडल डिग्री कॉलेज दिया है। मेरा ये मानना है कि देश में 72 जगह पर हमने मॉडल डिग्री कॉलेज दिए हैं। स्पेशल फोकस डिस्ट्रिक्ट्स जो होते हैं हमारे स्कूली शिक्षा की दृष्टि से, उसमें हमने इजाफा करके 42% का एलोकेशन एक्स्ट्रा किया है एज कम्पेयर टू अर्लियर ईयर्स वेयर इट वाज समवेयर अराउंड 38-39 और मैक्सिमम इट रीच्ड 40. So we've increased even in the school systems our contribution and allocation financially. और ये भी कि हमारे सेक्रेटरी स्कूल कुंटिया जी ने अभी शायद 2-3 दिन पहले ही एक 35 नक्सल प्रभावित जिलों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करा जिसमें विशेषतः सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान, लड़कियों का हॉस्टल, वोकेशनल ट्रेनिंग और एजुकेशन और केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालयों को खोलने के ऊपर चर्चा भी की और कुछ निर्णय भी किए। तो उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा के संदर्भ में दोनों ओर से हम लोग विशेषतः नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए प्रावधान कर रहे हैं, समर्थन राज्य की सरकारों को दे रहे हैं। Thank you, Honorable Minister, not only for your comprehensive briefing but comprehensive answers. I'm sure our friends are well informed. Friends, thank you for being here. The ministry will be distributing media kits on the first floor, I'm told. And also they have arranged tea and snacks on the 4th floor. Please join us. Thank you.